Hello, everyone. Welcome to this amazing session. Today, I have an amazing ally with us. She is Ananke's amazing ally, friend, collaborator, partner, Tehmeena Chaudhary. Tehmeena is the founder of Connected Women Pakistan, and she's going to tell us a lot about what Connected Women Pakistan is all about and what she's currently doing. So, Tehmeena, over to you. Thank you so much, Sabine, for your kind words. Thank you so much for having me here. Today, we are here to discuss about, Connected Women Pakistan, what we are doing and why we are doing, and and about our recent initiative that we have launched. It's about, it's an entrepreneurial challenge for women in startups. Okay, so we recently launched our signature challenge, that is Women Entrepreneurship Challenge, and we call it CWPC 21. We done it last year as well, and it's all about giving women entrepreneurs of Pakistan, the startups led by women of Pakistan, a chance to scale up and to increase their visibility, and also we are giving them a chance to learn new skills and whatever the challenges they are facing, तो वो challenges को किस तरह से वो जो mentors हैं और जो उनके businesses हैं जो कि already successful हैं उनके जरिए सीख सकते हैं. अब मैं थोड़ा सा कनेक्टेड वुमेन पाकिस्तान के बारे में भी बताना चाहूँगी कि कनेक्टेड वुमेन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इज़ बीन फाउंडेड बाय जीना, and I brought it Connected Women in Pakistan in 2018. The aim to bring Connected Women in Pakistan is because, we have so many women and who have the competency and the potential, but just because they couldn't leave their home and they have to take care of their families, so they are not able to pursue their dreams or achieve their goals or run their businesses. So what we are doing at Connected Women Pakistan, we are equipping these women who have the ambition and who want to run their businesses and have the entrepreneurial skills to equip with the technology and the right skills and run their businesses with the comfort of their home. अभी जो कोविड में हमने ये सब देखा है in last 2 years, the world has totally changed. मगर we are trying it since 2018 कि जो ख्वातीन हैं जो हमारे मुल्क की, खासतौर पर पाकिस्तान की, उनको किस तरह से आप सपोर्ट करें और किस तरह से आप उनको हम इनेबल करें कि वो अपने घर पे रहते हुए अपनी फैमिली को टेक केयर करते हुए भी उन टेक्नोलॉजी स्किल्स के ज़रिए और लर्निंग के ज़रिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें. तो अब जो कनेक्टेड वुमेन पाकिस्तान एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज है, इट्स ऑल्सो ऑल अबाउट दैट. इसमें जो हमारा पूरा चैलेंज है, इट्स रिवॉल्व अराउंड वुमेन, कि किस तरह से जो ख्वातीन हैं, उनके स्टार्टअप्स हैं, उनकी इंडिविजुअल नीड्स क्या हैं हर बिजनेस की, और किस तरह से उन इंडिविजुअल नीड्स को एड्रेस करते हुए हमको उनके साथ जो डिफरेंट दूसरे जो उनके पार्टिसिपेंट्स हैं, टू पेयर लर्निंग वो कर सकें, एंड एट द सेम टाइम किस तरह से जो कि रोल मॉडल्स हैं, जो अदर वुमेन रोल मॉडल्स हैं, जो सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन हैं, वो उनके जरिए उनकी एग्जाम्पल से लर्न करके आगे बढ़ सकें. तो इस चैलेंज का नाम चैलेंज हमने सिर्फ इसलिए रखा है कि एक तरह से कंपटीशन होगा, मोटिवेशन होगी, देयर इज अ 50,000 कैश प्राइज एज वेल, बट द फोकस ये है कि उनकी लर्निंग हो सके और उनकी बिजनेसेस को हम इस काबिल कर सकें कि वो उसको अपने स्केल अप कर सकें. यहाँ पे हमने अपने लास्ट ईयर का मैं बताना चाहूँगी. लास्ट ईयर हमने इसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया था. वी हैव 25 पार्टिसिपेंट्स जो कि प्रोसेस के जरिए देयर वर लाइक पिचिंग राउंड्स, बिजनेस मेडल राउंड और मुख्तलिफ राउंड्स के जरिए फिर हमारे पास टॉप फाइनलिस्ट 5 फाइनलिस्ट थे. उसमें से जो टॉप आई थी जिन्होंने 50,000 कैश लिया, माशाल्लाह शी जस्ट वन लास्ट मंथ पाकिस्तान स्टार्टअप कप एंड शी वन अ 1 मिलियन प्राइज. and it was her first competition जो कनेक्टेड विद पाकिस्तान का चैलेंज था, and I was after her कि आपने ज़रूर participate करना है. She was doing good at that time also, but ये कि it was a proper first challenge जिसमें उन्होंने participate किया और माशाल्लाह इतनी तेज़ी से grow किया. इसके अलावा भी we have like 2-3 other businesses जो कि जिन्होंने सिर्फ start किया था, and माशाल्लाह after the challenge even though कि वो top 5 में नहीं आए, मगर जो top 15 में भी थे उनमें से भी बहुत सारे businesses जो है माशाल्लाह they are doing really well. उस वक्त एक और चीज़ जो हमने अपने चैलेंज में रखी है कि कैश प्राइस तो एक इंसेंटिव है, और क्योंकि हमारा जो एक और जो मॉडल है ना कि हम लोग सब वॉलंटरी बेसिस पे काम करते हैं, एंड सभी आप भी इस चीज़ से बड़ा रिलेट करोगे कि हम कोई ग्रांट्स बड़ी बड़ी हमारे पास नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है. इट्स ऑल लाइक फ्यू एंटरप्रेन्योर वुमेन हु आर पैशनेट and focus about helping other women.
तो ये सारा जो हमारा चैलेंज है और कनेक्टेड वुमेन पाकिस्तान है, वो आप जैसे जो हमारे एलाइज हैं, पार्टनर्स हैं, और बहुत सी और ऐसी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और सपोर्टर्स हैं जो कि हमें सपोर्ट कर रही होती हैं अपने टाइम रिसोर्सेज से। तो हमने चैलेंज के अंदर भी इस तरह रखा है कि देयर इज अ वन कैश प्राइज और बाकी सारे इन काइंड प्राइजेज हैं। जिन चीज़ों में हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर स्ट्रगल कर रही होती हैं या स्टार्टअप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि एक हमने एक प्राइज है कि वी आर मेकिंग अ फ्री वेबसाइट फॉर दैम। फ्री वेबसाइट करके उनको 1 मंथ की फ्री मैनेजमेंट देते हैं। इस तरह से 1 मंथ की सोशल मीडिया मैनेजमेंट फ्री है। कंटेंट राइटिंग, जैसे उनका बिजनेस के हवाले से कंटेंट ब्रांडिंग, एक एक ब्रांड स्ट्रेटजीज है, उनको किसी एक बिजनेस को पूरी उनकी कंप्लीट ब्रांडिंग करके दे देंगे। तो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू डू। और एक और चीज थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि विद कनेक्टेड वुमेन पाकिस्तान वी वर्क विद वुमेन ओनली। ये थोड़ा सा हम बाइस रखते हैं कि जो हमारे जितने भी स्पीकर्स होते हैं, जो मेंटोर्स होती हैं और जो भी रोल मॉडल्स होते हैं, दे आर ऑल वुमेन। इट्स ऑल वुमेन, इट्स ऑल वुमेन वर्किंग फॉर वुमेन। I this idea of yours, I completely, or Anand ke rather, resonates with it, क्योंकि we do the same thing, and there needs to be a space जहाँ पे औरतें जो है वो औरतों की allies भी हों, औरतें जो है वो करें, क्योंकि and you would agree with me ke yes, we need diversity and inclusion and a place where everyone is included, ठीक है ना, men, women, everyone is included. लेकिन एक स्पेस ऐसी बड़ी जरूरी है कि जहाँ पे औरतें जो हैं वो they sit and they network, they engage. It's a safe environment where they are, they can freely speak their minds. Exactly. और सभी जैसे व्हाट आई सी एंड आई थिंक यू आल्सो सी, जब हम ख्वातीन के साथ काम कर रहे थे ना, जो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो उनका इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है, द डाउट दे हैव ऑन देयर सेल्फ, कि उनको ये लगता है कि दे आरंट गुड इनफ। तो जब वो इस तरह की सेफ स्पेसेस में आती हैं तो दे हैव अ चांस टू स्पीक अप, और वो जो अपने फियर्स होती हैं उनको वो ओपनली शेयर कर सकती हैं, अपने चैलेंजेस को शेयर कर सकती हैं। क्योंकि ये बात हम लोग जब, क्योंकि वी वर्क विद वुमेन ओनली, स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, तो ये हम बार बार ये बात सुन रहे होते हैं। अभी भी जैसे कि टुडे वी हैव अ वर्कशॉप ऑन बिजनेस मॉडल, तो वो जो एक लीन बिजनेस मॉडल कैनवस होता है, इट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग, और उसमें वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे थे और ऐसी बातें थी, एंड दे शेयर विद अस कि ये हमें ये प्रॉब्लम थी, मगर हमें ये कि शर्म आती थी पूछने में, या कि लोग क्या कहेंगे, कि हमें ये भी नहीं पता। तो बिल्कुल इट्स ओके कि अगर आपको कोई चीज पता नहीं है, और यही हम अपने प्लेटफॉर्म से कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो आप बिजनेस कर रहे हैं, एंड देयर आर मेनी वुमेन who are doing really good but they don't have a proper business knowledge, तो एक certain stage के पर जाके उनकी जो growth है वो stagnant हो जाती है। And I have been fortunate enough, or I have been focused enough कि I'm able to bring my business to international level and I was able to scale it up. तो मैं यही चीज चाहती हूँ कि मतलब मेरी कोशिश भी यही है कि जो और ख्वातीन हैं जिनके बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं, आइडियाज बहुत अच्छे हैं, but why we don't see many women entrepreneurs on the mainstream businesses? ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो हैं ख्वातीन, मतलब आपको जो नजर ट्रेडिशनल बिजनेस में नजर आती हैं, या फिर ये कोई सिर्फ कॉमन बिजनेसेस में नजर आती हैं, क्लोथिंग हो गया, फैशन हो गया, ब्यूटी हो गया, बट देयर आर मेनी अदर बिजनेसेस आल्सो जहाँ के वुमेन बहुत अच्छी तरह से काम कर सकती हैं, ग्रो भी कर सकती हैं एंड स्केल अप भी कर सकती हैं, एंड दिस वी आर ट्राइंग टू डू। अभी इस बार भी हमने अपने चैलेंज में वी हैव लाइक 2-3 ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो कि टिपिक ट्रेडिशनल में कह रही हूँ कि जो बिल्कुल होता है कि जी ये तो सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं, ख्वातीन नहीं कर सकती, उस तरह के बिजनेसेस हैं। और एक दो ऐसे बिजनेसेस भी हैं जो कि लोग मतलब उनके बारे में बात करना पसंद नहीं करते, या हमेशा एक स्मॉल स्केल पे ही रहते हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू सपोर्ट देम। उनको मेन स्ट्रीम पे लाना चाह रहे हैं, हमको लाइमलाइट में लेके आना चाह रहे हैं कि नो मैटर व्हाट योर बिजनेस इज, व्हाट टाइप ऑफ योर बिजनेस इज, अगर आप उसको सही स्ट्रेटजी से लेके चलेंगे तो यू कैन ऑलवेज स्केल इट अप। Absolutely, I agree with you, and I'm really excited about this event. So, if you could tell us, जो last year के key takeaways थे, मतलब के what have you learned from it? What has Connected Women Pakistan की क्या learning थी as far as the event is concerned, और जो participants हैं वो? बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। फॉर अस, हमारे लिए एक टोटल डिफरेंट जर्नी थी। जैसे कि
जब आप देख रहे होते हैं, when you are an outsider, आप देख रहे होते हैं, and being an entrepreneur myself, कि बहुत सारी चीजें जो कि अब मैं भूल चुकी हूँ, मैंने अपने when I have started my journey, जो उस वक्त मैं स्ट्रगल कर रही थी, तो वो सारी चीजें रिफ्रेश हुई। और बहुत सी चीजें जिसमें मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि बहुत सी छोटी छोटी, दे आर वेरी माइनर इश्यूज जो कि विमेन फेस कर रही होती हैं, और वो माइनर इश्यूज होते हैं, और वो बहुत से लोगों को नजर नहीं आ रहे होते कि वो क्यों ग्रो नहीं कर पा रही हैं। और उसमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं है, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, मगर क्योंकि वो नेटवर्किंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही होती हैं, या वो उनको इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू टेक द वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाती या सक्सेसफुल नहीं हो पाती, और दे लूज होप, और वो बिजनेस स्टार्ट करती हैं और फिर वो रह जाता है। एक और चीज जो हम लोग कि वी रन अ फेसबुक ग्रुप, जो हम जिसमें वी हैव लाइक अराउंड 7,000 मेंबर्स। इट्स अ वेरी फोकस्ड ग्रुप विद ऑल women entrepreneurs only, यानी कि हम प्रोफेशनल्स भी हैं मगर मेनली women entrepreneurs हैं एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर बिजनेसेस। जैसे हम कोई भी पोस्ट लगाते हैं कि शेयर योर लिंक, शेयर समथिंग अबाउट योर बिजनेसेस, तो वी हैव लाइक 100 ऑफ मैसेजेस, 300-400 मैसेजेस आ रहे होते हैं। एंड व्हेन वी आस्क देम कि हाउ मेनी ऑफ दीज बिजनेसेस आर रजिस्टर्ड, तो सिर्फ फ्यू मैसेजेस आते हैं, लाइक हार्डली 10, 15, 20। तो अब एक उन जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स का पिछली बार हमने ये किया था, और इस बार भी ये है कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं भी हैं, बट इफ यू आर अमंग टॉप 5, और आपको इफ यू आर गेटिंग अ प्राइज, तो यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ इन योर बिजनेस। तो उस वक्त बहुत सारी ख्वातीन का फियर ये था कि हम अपना बिजनेस रजिस्टर करवा लेंगे तो पता नहीं कितने पैसे लगेंगे इसके ऊपर। सेकेंडली ये कि कि देवर अफ्रेड कि शायद एफबीआर उनके पीछे लग जाएगी, या वो अब उनको टैक्स हर महीने देना पड़ेगा, और पता नहीं उनकी इनकम जो है अभी बहुत कम है, तो इसमें से पता नहीं कितनी ज्यादा उनको इनकम वो जो है वो टैक्सेस में चली जाएगी। तो ये हमने उनको एजुकेशन दी, और फिर हमें ये भी पता चला कि देयर आर मेनी बिजनेसेस हु आर कॉम्पिटेंट एंड केपेबल इनफ, बट जस्ट बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टर्ड, दैट्स व्हाई दे आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज। तो हम लोगों ने ये पूरी एक कैंपेन शुरू की है कि वी आर गाइडिंग विमेन entrepreneurs to register their businesses, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है बिजनेस को रजिस्टर कर सकें और अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें। सेकेंडली ये कि जैसे लास्ट ईयर हमने डिफरेंट बिजनेसेस के साथ काम किया, मेनली हमने 15 बिजनेसेस के साथ काम किया, और वो डिफरेंट बिजनेसेस थे, एक दो ऑर्गेनिक ब्रांड्स थे जो नेचुरल ब्यूटी और इस तरह की प्रोडक्ट्स, उन्होंने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स निकाली। कुछ जो थे वो फूड बिजनेसेस थे। अच्छा, जैसे फूड बिजनेस है, यहाँ पे मैं करना चाहूंगी मेंशन, वो हमारे मतलब शी इज वी रियली प्राउड ऑफ हर द वे शी हैज ग्रोन इन लाइक 1 ईयर। तो उस वक्त ये था कि शी व्हेन शी ज्वाइंड कनेक्टेड वुमेन पाकिस्तान, तो she came to me and she asked me कि she was doing the business as a side hustle and she was doing a full time job and she was afraid कि मतलब मैं अगर जॉब छोड़ दूंगी तो पता नहीं मैं इतने पैसे कमा सकूंगी नहीं कमा सकूंगी। And we supported her, mashallah, and now she is earning 5 times more than she was earning in her job, and she is growing like anything. और वो एक typical food business है, and the idea was different कि they were just providing wedding breakfasts. That's how she started. Now she is providing healthy food. Now she's providing corporate meals. So there are so many examples like that. And there was another business who was just started, and she started like kids जो होता है कि not like cosmetics, but kids के लिए different products थी जो कि उन्होंने start की थी, organic products. She came up with the idea because of her daughter. She was not able to find any organic stuff for her daughter, so she started there, and mashallah she is doing also really well. And there is one more business that I want to discuss here. It's about a mehndi business. She was a young girl, and she was just doing mehndi business. She's making her cones and applying mehndi henna, and she was started initially last year, and now mashallah she is not only doing good herself, but she has made a subscription and affiliate model, and many other women are working with us and they are also earning, and she's also earning like 5-6 more times that she was earning last year. So that's not about only learning the skills, it's also about generating more revenue, and and getting to know how you can scale up your businesses in your own domain. ये सारी मतलब ये चीजें हमारे लिए भी लर्निंग थी, हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए थी। और इस बार व्हाट वी हैव डन कि उसको जो लास्ट ईयर वी वर हैविंग जस्ट 3 वर्कशॉप्स, सिर्फ 3 वर्कशॉप्स हमने रखी थी फॉर बिजनेस मॉडल, और ये था हाउ टू पिच। वी जस्ट kept 3 workshops, one for about the business model, one for about how to pitch your business,
और इसके अलावा एक वर्कशॉप और थी अबाउट लाइक सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन सेलिंग. दिस टाइम वी हैव अरेंज 5 वर्कशॉप्स. We also collaborated with USAID जिसमें कि वो Facebook की वर्कशॉप करवा रहे हैं ऑनलाइन selling on social media के ऊपर. And then this time also we have collaborated with international speakers. और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक और वही जैसे मैंने पहले इम्पोस्टर सिंड्रोम की बात की थी कि जो हमारी ख्वातीन हैं, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वही सोच रही होती हैं कि जो पाकिस्तान से बाहर की ख्वातीन हैं या जो फॉरनर्स हैं, पता नहीं उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या क्या उनके पास स्किल्स होती हैं जो हमारे पास नहीं हैं. हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं. नाउ आई एम इन कनाडा एंड आई सी द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स स्ट्रगलिंग विद द सेम प्रॉब्लम्स, सेम चैलेंजेस, फेसिंग द सेम चैलेंजेस, कि वो किस तरह से उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं जो कि उनके काउंटर पार्ट्स को होती हैं. तो आई हैव इन्वाइटेड फॉर द वर्कशॉप्स women entrepreneurs from different part of the world. Or we did have a business model workshop today. Then we have a financial management workshop. We have a pitching workshop कि how you can pitch your businesses to investors or even not investors. You should know how you could tell about your business to someone who doesn't know about it. और इसके अलावा we have a special workshop on access to finance कि जो आप अपना बिजनेस रजिस्टर करेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा. हाउ कि आपको पता है कि फॉर विमेन एक्सेस टू फाइनेंस इन पाकिस्तान इज़ ऑलमोस्ट नन. तो आपने बैंकेबल किस तरह से बनना है. उसमें हम सारा सिस्टम को तो ब्लेम कर रहे होते हैं कि जी सिस्टम में ये नहीं है, मगर वो आपको बैंकेबल किस तरह से बनना है, कौन सी ड्यू डिलिजेंस है जो कि आपको पूरी करनी ज़रूरी है, जिसके बाद यू विल बी एबल टू गेट एक्सेस टू फाइनेंस. एक वो वर्कशॉप हमने उस पर रखी है जिसमें वी हैव इनवाइटेड बैंक्स और जो फाइनेंस स्पेशलिस्ट हैं, दे विल कम एंड गाइड द वुमेन कि क्या आपको चीज़ें होनी चाहिए. इवन यू आर अ स्टार्टअप या स्मॉल बिजनेस, तो आपने किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है कि वंस यू आर एट द स्टेज सो यू विल बी एबल टू एक्वायर द फाइनेंस. And then we have a networking event, and that is very important, and I'm very excited about it. Usme we have invited successful women role models from all around the world. They will come and share their journey with our participants, and it will be an open platform that participant could ask anything from them कि उन्होंने ये कैसे किया, वो कैसे किया. और जो एक ये fear होता है ना हमारे minds में कि जो successful business है वो अपने secrets share नहीं करते. तो in that workshop they will be sharing their secrets with the participants, and they get to know कि okay the challenges हैं या obstacles हैं, और journey जो है वो सबकी same ही होती है. You will learn with trial and error basis, and they are fortunate कि अभी now there are so many other organizations also जो कि इस तरह की accelerators हैं, incubators हैं, and everybody is willing. और अभी पाकिस्तान का जो startup ecosystem है बहुत ज़्यादा evolve कर चुका है. And we are just trying to play a humble role, और ये कहना चाहिए ना कि we are playing a role in our humble capacity कि हम भी अपना कुछ रोल प्ले कर सकें कि अपनी जो हमारी जो women entrepreneurs हैं उनको support कर सकें. I think what you're doing is amazing because you pinpointed दो key elements. एक का तो मैं सवाल करने वाली थी, और these two elements are so crucial, being registered as a business and being bankable. क्योंकि अगर आप डिफरेंट रिसर्च भी पढ़ेंगे, क्या करेंगे, दुनिया भर की भी देखेंगे, तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि मेजॉरिटी ऑफ वुमेन आर अनबैंक्ड. मैं अभी जनरली बात कर रही हूँ. तो उसमें कितना बड़ा परसेंटेज प्रॉमिसिंग एस्पायरिंग फीमेल एंटरप्रेन्योर्स का है, वो भी देखना जरूरी है. सो दीज आर रियली की पॉइंट्स दैट women who are aspiring to be entrepreneurs या उनके पास कोई idea है, they need to listen to this, they need to work on this. So I think what you're doing is simply amazing. So thank you so much Sabeen. And वही बात है कि अभी जैसे हम बात करते हैं ना बिजनेसेस की, तो उनको मतलब जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है फाइनेंस की वो भी उनको नहीं पता होता. जैसे आपने कहा अनबैंक है, तो कितने सारे बिजनेस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कर रही हैं एंड दे आर अर्निंग गुड, और वो अपने हस्बैंड के अकाउंट से ही कर रही थी. दे डोंट इवन हैव अ बिजनेस अकाउंट और इवन अ पर्सनल अकाउंट. तो वो उनको उस चीज़ का नहीं पता. और एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जैसे जो बिजनेसेस हैं, विमेन खासतौर पे ओन बिजनेसेस हैं, they don't understand the value of the IP, यानी कि intellectual property क्या होती है, और आपकी having your own IP, why it is important. कि they are, अभी recently I have seen someone, she is really doing good,
उनका बिजनेस है एंड यू नो उनका जो फेसबुक पेज एंड जो इंस्टाग्राम है वो हैक हो गया एंड शी लॉस्ट all her clientele, all the data and everything. तो इट हैपेंस विद मेनी women क्योंकि आपके पास कोई रिकॉर्ड आप नहीं बना रहे होते, रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, और इसीलिए से मैंने वेबसाइट की बात की कि व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू हैविंग योर ओन वेबसाइट, योर ओन डोमेन. और आपने इसी तरह से कि जो कॉस्ट, उनको ये नहीं पता कि उनके बिजनेस का कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है. मतलब ये बड़े बड़े अल्फाज उनको लग रहे होते हैं. कस्टमर आपको यानी कि आपका जो क्लाइंटल है या क्लाइंट यू नो वो कस्टमर बेस है वो 10,000 तक पहुंच गई है, बट यू डोंट नो कि व्हाट इज योर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट. आपको यही नहीं पता है कि आप, अच्छा उनको ये नहीं पता कि उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या हैं. तो हालांकि ये मतलब उनको ये लगता है कि जी तो ये बड़े बड़े अल्फाज हैं. हालांकि ये बड़े बड़े अल्फाज इसीलिए बनाए गए हैं या टर्मिनोलॉजी इसीलिए क्रिएट की गई हैं कि आप अपने प्रोसीजर्स को और अपने बिजनेसेस को सही तरीके से रन कर सकें, स्केल अप कर सकें, आप ग्रो कर सकें. मैं यू नो आई ऑलवेज से कि यू नीड टू लर्न हाउ टू ऑटोमेट एंड हाउ टू डेलीगेट योर बिजनेसेस. इवन इफ यू आर अ स्टार्टअप, अगर आप एक भी हैं, यू नो you're a सिंगल ओनर और सोलोप्रेन्योर, स्टिल यू नीड टू क्रिएट सिस्टम्स. क्योंकि कल आज आप एक हैं तो कल हो सकते हैं आप 5 हों, फिर आप 10 हों और इंशाल्लाह 50 हों, 500 हों. व्हाई नॉट? कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है तो ऑलवेज एम हाई. यही हम सबको कहते हैं कि यू नो इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर तो यू नीड टू एम हाई एंड यू नीड टू प्रिपेयर टू स्केलिंग अप. और उसके लिए जो कुछ बेसिक्स इंग्रेडिएंट्स हैं वो जरूरी होना चाहिए. और आपको यू नो जैसे हम बीइंग अ वुमेन, हम जो भी यू नो हम लोग यू नो कुकिंग का हमें सबको शौक होता है. तो जब तक आपके खाने की रेसिपी सही नहीं हो, रेसिपी के हिसाब से आप इंग्रेडिएंट्स नहीं डालेंगे तो वो जो डिश है यू नो वो परफेक्ट नहीं बनेगी. उसका टेस्ट खराब होगा या वो यू नो आधी पकी हुई होगी या ओवर कुक्ड होगी, अंडर कुक्ड होगी, और वो मतलब आपको रिजल्ट्स वो अचीव नहीं होंगे इफ यू डोंट फॉलो द रेसिपी प्रॉपरली एंड यू डोंट यूज द राइट इंग्रेडिएंट्स. तो वही हम ये कोशिश कर रहे हैं यू नो विद मेनी एंटरप्रेन्योर्स के वी प्रोवाइड देम द राइट स्किल्स, right knowledge and right resources to scale up and take their businesses to next level, inshallah. That sounds really amazing. So anything bulky and not anything, what are we looking for? हम क्या expect करें इस साल के event से? इस साल के इवेंट से you know we are very excited. We have shortlisted 25 participants and they will go through the same process, like they are like 3-4 steps. जिसके बाद we will select the top 5 and we have some very good businesses जैसे मैंने आपसे कहा, and I hope it will be a much bigger one than last year. और हम जो है ये कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि जो businesses हैं इस बार हमारा ये टारगेट है एंड ये कोशिश है कि जो टॉप 5 हों दे विल बी एबल टू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग बिफोर द नेक्स्ट ईयर चैलेंज इंशाल्लाह. Wow, that is amazing. Any last words, Tehmeena? बस ये कि आई वुड लाइक टू से कि वी नीड सपोर्ट फ्रॉम पीपल लाइक यू एंड वी नीड पीपल टू सपोर्ट women in their house, in their neighborhood and in their workplaces. कि जो एक होता है ना, आप डाउट कर रहे होते हैं कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंसी पे ख्वातीन की, तो डोंट डू दैट. women entrepreneurs या women are capable enough to do anything and they will show you one day. I absolutely agree with you, especially the fact कि जो support की आप भी बात कर रही हैं Tehmeena, I think you zeroed in on it कि support सबसे बड़ी support तो यही है कि आप उनको उनकी capabilities को doubt ना करें. I think that is one of the biggest कि supporting factor है. Yeah, definitely, because you know you and me are able to do these things, whatever you are doing from Ananke and I'm doing from Connected Women Pakistan and for my own company Stuff Food also. It's because we have this right kind of support. We have our families, our husbands who are supporting us, who believe in us, and that's why we are here and we were able to achieve whatever we have achieved or what we are doing. So it's very important that you have the right support system around you, and especially women validation is very important for us. So just be nice, just be kind, and women are capable of doing and achieving anything and everything. Thank you. Absolutely. Thank you so much, Tehmeena. And viewers, apologies if you hear a lot of noise from my background because my kids are there. And like I was telling Tehmeena, this is the new norm.
and we are working moms. So, And so this exactly, is like this is the beauty of being a women entrepreneur, that you care of your family. You keep your family, besides you, and as you grow, they also grow. absolutely, absolutely. Thank you so much, Tahmina. This Thanks has for been a having me. wonderful. It's and it's my pleasure. It's Ananke's pleasure to have you on board. So thank you so much. Thank you. Take care. Allah Hafiz.